Okay, so sit down. In our these classes basically हम क्या पढ़ रहे हैं? We are studying about numbers. Okay. In the previous classes, what we have learned? In the previous classes or in the previous chapters, we have learned about what? Decimals, fractions, and integers. So basically, what we are doing, we are reading about or we are studying about numbers. In this chapter, we will also learn about the numbers. So what is the name of our chapter? The name of our chapter is rational numbers. Okay, so basically what we have learned about whole numbers. First of all, what we have learned about what are natural numbers. So what are natural numbers? The counting numbers 1, 2, 3. Yes, the counting numbers 1, 2, 3, 4, 5 and so on are known as natural numbers. Then we talk about the whole numbers. What are whole numbers? Natural numbers with zero are known as whole numbers. After that we have read about integers. What are integers? Okay, keep quiet. Natural numbers with negative of them are known as integers. So okay, so tell me, did natural number include integers include zero or not? We include zero in integers or not? Yes, we include it. Okay, so we have also read about fractions. What are fractions? Yes, the numbers in the form of A upon B, where A and B are whole numbers and B is not equal to 0 are known as fractions. Okay, fractions में और क्या पढ़ा था? We have discussed about the multiplication of fractions, division of fractions and addition and subtraction of fractions. We have read about it, na? Okay. So so in this chapter we will read about rational number. So basically, what are rational numbers, beta? The numbers which can be represented in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is equal to not 0. ठीक है, where P and Q are integers, where Q is not equal to 0. Okay, so आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा कि why we are like fractions में भी तो यही होता है, रेशनल नंबर में भी यही हो रहा है, तो what is the difference between fractions and rational numbers? ओके, सो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी बेटा? रेशनल नंबर की थी कि द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ A अपॉन B, वेयर A एंड B आर whole numbers where B is not equal to 0. Understood or not? So this is the definition of rational number. This is the definition of whole number. What are rational numbers? The numbers which can be represented in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Here denominator and numerator are integers and the denominator can never be 0. Understood or not? And this is the definition of fraction. What is this? This is the definition of fraction. Okay, so fraction में क्या होता था? The numbers which are in the form of A upon B, where A and B
आपका न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ये दोनों क्या होंगे, आपके होल नंबर्स होंगे, वेर आपका इसमें भी डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ओके, सो आप मुझे बताओ कि आपने जो ये दोनों डेफिनेशन पढ़ी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, फ्रैक्शन। Have you noticed any difference between rational number and the fractions? Yes, ma'am. What? Yes, in rational numbers, the numbers, the denominator and the numerator are integers, okay? And in fractions, the denominator and the numerator are the whole numbers. अब I have already told you that whole numbers are those numbers which are natural number with 0. Whole numbers are the numbers with natural number with 0. Okay, so आप मुझे बताओ फ्रैक्शन में हम जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। अब हमें पता है कि होल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, होल नंबर स्टार्ट विथ 0, सो 1 2 3 ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो क्या फ्रैक्शन कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हमने क्या लिया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हमने कंडीशन अप्लाई कर दी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर होल नंबर्स इन फ्रैक्शन। दैट मीन्स फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। तो फ्रैक्शन नेगेटिव में आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव क्यों होंगे? क्योंकि वो होल नंबर्स है। लेकिन सिमिलरली व्हाट वी हैव रेड अबाउट इन रेशनल नंबर में क्या होता है, अगेन जैसे फ्रैक्शन को a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसे ही रेशनल नंबर को p अपॉन q या फिर a अपॉन b कह लो, उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा, इंटीजर्स होगा। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव्स, नेचुरल नंबर्स और उनके नेगेटिव्स के साथ, उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें तो p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होगा। अगर यहाँ पे 2 लेंगे तो -2 भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि कंडीशन इज अप्लाइड कि p और q क्या होंगे, आपके इंटीजर्स होंगे। तो रेशनल नंबर कैन बी नेगेटिव बट फ्रैक्शंस कैन नेवर बी नेगेटिव। अंडरस्टूड और नॉट? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर्स एंड दी फ्रैक्शंस। आगे बात समझ में कि फ्रैक्शन और डेसिमल में फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, दोनों को हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इन फ्रैक्शंस a और b, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होंगे, ऑलवेज होल नंबर्स होंगे, वेयर डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0, बट इन रेशनल नंबर a and b, a upon में b और numerator and denominator can be negative since a and b are the integers. आगे बात समझ में? So this is the basic difference between rational number and the fractions. अब आप मुझे ये बताओ, एक चीज बताओ, क्या हम fractions को रेशनल नंबर बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना, क्योंकि रेशनल जितने भी फ्रैक्शंस है सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होंगे, बट हमारी कंडीशन क्या है कि रेशनल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्या फ्रैक्शंस नेगेटिव हो सकते हैं? सो वी कैन कंक्लूड दैट every fraction is a rational number, but every rational number may not be a fraction. Understood or not? Okay, okay. So this is the first difference between the rational number and the fraction. Okay, now we will talk about 0. Okay, can you please tell me that 0 is a rational number or not? Yes, yes. Why? Yes. Okay, so we are considering 0. Okay, can we write 0 as in the form of p upon q? If I will put the denominator as a 1, so ये आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ p upon q, क्योंकि हम किसी भी डिजिट के किसी भी नंबर के नीचे उसके डिनोमिनेटर में 1 पुट कर सकते हैं। क्या उस नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या उस फ्रैक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, ये आपकी प्रॉपर्टीज होंगी किसकी, रेशनल नंबर की, कि फ्रैक्शंस
every fraction is a rational number, but every rational number may not be a fraction. Understood? Second one is 0 is a rational number. Why? Because we can write 0 as in the form of rational number, that is p upon q is equal to 0 upon में 1. Understood? और देखो इसमें q जो है आपका 0 भी नहीं है, तो इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है? रैशनल नंबर की हो रही है ना? ओके, सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी of a rational number. Then what we have read read about that natural number. Now we'll talk about natural number. क्या natural number whole rational number होंगे? Yes, ma'am. होंगे या नहीं होंगे? Yes, ma'am. Because what are natural numbers? Counting numbers are known as natural number. अब क्या natural number 1, 2, 3, 4, 5 सारे natural number को आप क्या कर सकते हो? Natural numbers को बेटा आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो. 1, 2, 3, 4. ओके, 1 को आपने क्या लिख दिया? 1/1 के फॉर्म में लिख दिया. ओके, 2/1, 3/1, 4/1. So these all natural numbers can be written in the form of p by q, where p and q are इंटीजर्स एंड q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0. अब देखो इसमें क्या हमारा डिनोमिनेटर 0 है? नहीं ना. तो और हमने क्या किया कि हमने नेचुरल नंबर्स को किस फॉर्म में लिख दिया? इन द फॉर्म ऑफ p बाई q. तो अब आप मुझे बताओ कि क्या हम सारे नेचुरल नंबर को रेशनल नंबर बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना. सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, बट इट इज नॉट मे ऑलवेज पॉसिबल दैट एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. ओके, आप मुझे बताओ कि 2 रेशनल नंबर है या नहीं है? है ना. ओके, सो 2/1 इज अ रेशनल नंबर. क्या आप मुझे बताओ -2/1 ये रेशनल नंबर है या नहीं है? है ना, ये भी रेशनल नंबर है. पर क्या -2 नेचुरल नंबर है? नहीं है ना. तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि हम नेचुरल नंबर्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ rational number, but it is not always possible that we can say that the fraction that the natural numbers are the rational numbers. Understood or not? Okay, now we will talk about the whole numbers. Can whole numbers can be represented in the form of p upon q? क्या whole numbers rational number हो सकते हैं? हो सकते हैं या नहीं हो सकते? Obviously हो सकते हैं, including 0 also. तो 0 whole numbers क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब आपके क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे. ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो? होल नंबर्स ये आपके होंगे होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो इनको आपको किस फॉर्म में लिखना है? इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. कैन बी राइट 0 एज 0/1, 1/1, 2/1, 3/1. So we are writing whole number in the form of p upon q. So every whole number is a rational number, but every rational number may not be whole number. Okay, क्योंकि whole numbers आपके क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव होते हैं. लेकिन क्या रेशनल नंबर के नेगेटिव क्या होल नंबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना. अंडरस्टूड. सो हमने क्या क्या पढ़ा है? First of all, what we have started with the rational number. What are rational number? The numbers which can be represented in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Understood? After that, we have read about fractions. We have read about that what is the basic difference between rational number and the fractions. Okay? तो रेशनल नंबर ऑफ फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है? दोनों के दोनों को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. बट इन रेशनल नंबर p एंड q आर इंटीजर्स एंड इन केस ऑफ फ्रैक्शंस p एंड q न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑलवेज होल नंबर्स. होल नंबर्स. 0 we can also conclude 0 in the fraction. Understood or not? Okay. After that, integers. We are talking about integers. Integers क्या होते हैं? Natural numbers और whole numbers along with their negatives. ठीक है, natural numbers with their negatives. क्या हम सारे integers को p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बताओ. Yes, ma'am. लिख सकते हैं ना.
तो अब आप मुझे ये बताओ कि क्या हमारे फोर्थ वन इज हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होंगे बेटा? इंटीजर्स आपके -5, -4, -3, -2, -1, 0, 0, then 1, 2, 3, 4, 5। देखो अब देखो ये सारे पॉजिटिव्स ले लिए, उनके हमने नेगेटिव्स भी ले लिए, तो ये सारे क्या होंगे? आपके इंटीजर्स होंगे। अंडरस्टूड और नॉट? इंटीजर्स की डेफिनेशन एज यू ऑल नो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्या हम इंटीजर्स को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? -5 अपॉन 1, वी कैन राइट इट -4 अपॉन 1, -3 अपॉन 1, -2 अपॉन 1, देन 0 को भी 0 अपॉन 1, देन 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, सॉरी 2 upon 1. Understood or not? So we can write integers in the form of P upon Q. So we can conclude that कि integers सारे integers क्या हो सकते हैं? Rational numbers हो सकते हैं, ठीक है। But क्या every rational number is an integer बेटा? No. So but rational number need not to be integer. Understood? Okay. Properties पढ़ ली, ठीक है। 0 के बारे में पढ़ा, 0 इज अ रेशनल नंबर। आफ्टर दैट क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, बट एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी, every natural number need not to be rational number. Understood? After that we have read about whole numbers. Every whole number is a rational number, but every rational number need not to be a whole number. Understood? After that we have read about integers. Every integer is a rational number, but it is not always possible that every rational number is an integer. Understood or not? Yes. Okay. After that we have read about positive rational numbers. What are positive rational numbers beta? What are positive rational numbers? Who will tell me? Positive rational number. बेटा पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? यस मानसी, व्हाट आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स बेटा? यस, वेरी गुड, सिट डाउन। Those rational numbers in which numerator and the denominator both are either positive or negative. Understood or not? Those rational numbers in which numerator and denominator both either positive or both negative. Understood or not? Okay, so I'm taking an example. Okay, let us consider that 3 upon 5 is a rational number. 3 upon 5 क्या है आपका? एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कब होगा बेटा? ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कब होगा? जब हम when आपका न्यूमरेटर क्या है इसमें? 3 एंड डिनोमिनेटर इज 5। अब देखो दोनों पॉजिटिव है ना? तो हम क्या कहेंगे? 3 upon 5 इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। अंडरस्टूड? ओके, नाउ if I will put the negative sign in the denominator as well as in the if I will put the negative sign in the numerator as well as in the denominator, क्या आप मुझे बताओ कि फ्रैक्शंस में क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम कि नेगेटिव नेगेटिव विल कैंसिल आउट इन फ्रैक्शंस। तो ये अल्टीमेटली आपका क्या बन जाएगा? आगे 3 अपॉन में 5, तो ये आपका अगेन क्या बन गया? एज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो आप मुझे बताओ कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होंगे? वो नंबर्स, वो रेशनल नंबर्स जिनमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। अंडरस्टूड और नॉट? ओके, आफ्टर दैट हमारा टॉपिक क्या है? नेगेटिव रेशनल नंबर। अब नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होंगे? बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब देखो पॉजिटिव में क्या होता था कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, बट इन नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा? दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, और हम कह सकते हैं कि
दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के जो साइन होंगे वो हमेशा क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, ओके, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव रेशनल नंबर। बेटा नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनमें यस हाँ, बेसिकली न्यूमरेटर एंड सिट डाउन, बेसिकली क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, और अगर न्यूमरेटर नेगेटिव होगा तो डिनोमिनेटर विल बी पॉजिटिव। अच्छा, एक बात बताओ, नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल 5/1। अभी ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है या नेगेटिव रेशनल नंबर, ये बताओ। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है अभी। ओके, नाउ आई एम मेकिंग दिस पॉजिटिव रेशनल नंबर, I am converting this positive rational number into the negative rational number. If I will put this sign, negative sign in the numerator, then this will become negative rational number. ठीक है, आगे बात समझ में? तो अब आप देखो, न्यूमरेटर इसमें नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइंस क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ओके, मान लो कि इसी नेगेटिव को मैं क्या कर दूं, डिनोमिनेटर में फिट कर दूं, देन अगेन ये क्या होगा आपका, नेगेटिव रेशनल नंबर। अंडरस्टूड और नॉट? सो पॉजिटिव रेशनल नंबर, दोज रेशनल नंबर in which both the numbers numerator and denominator are either positive or negative, but in negative rational number numerator and denominator have their sign opposite in nature. Understood or not? Okay. अब आप कुछ ऑपरेशंस होते हैं रेशनल नंबर के ऊपर, ठीक है, हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, मान लो कि लेट अस कंसीडर, मान लो कि आपका P/Q क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, हु इज टॉकिंग? स्टॉप टॉकिंग। ओके, मान लो कि P/Q क्या है आपका, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, आप लेट अस कंसीडर कि हमने कोई m जो है वो एक नॉन जीरो नंबर ले लिया। ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर जिसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो नहीं होगी, बाकी सारी वैल्यूज होगी। ठीक है, अब मान लो हम क्या करते हैं, P/Q इस रेशनल नंबर को if we are dividing numerator with this non-zero positive number, then we have to divide this m by denominator also. इससे आपके रेशनल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसमें क्या होगा कि अगर आप रेशनल नंबर्स को किसी भी नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो डिजिट से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो आपके फ्रैक्शन पर या सॉरी आपके रेशनल नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड और नॉट? सेम एज अगर आप रेशनल नंबर को किसी भी सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मान लो कि वो नॉन जीरो नंबर क्या है आपका, r है। ठीक है, r आपने यहाँ पे क्या ले लिया, नॉन जीरो इंटीजर। अंडरस्टूड? तो आप क्या करोगे, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग दिस न्यूमरेटर विथ r, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर विथ r ऑल्सो। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, आपके रेशनल नंबर पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगेन इट विल बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो इन दोनों से आपने क्या समझा बेटा, इन दोनों से आपने क्या समझा कि रेशनल नंबर को अगर आप किसी सेम नंबर से डिवाइड करते हो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो क्या आपके रेशनल नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। सेम एज अगर आप किसी रेशनल नंबर को किसी नॉन जीरो किसी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करोगे उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, क्या रेशनल नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हम ये चीजें कर सकते हैं, हम
रेशनल नंबर में किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। द कंडीशन शुड बी कि वो जो नंबर होगा न्यूमरेटर भी सेम हो, न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा और डिनोमिनेटर में भी। अंडरस्टूड और नॉट? ओके, ओके। सो एक चीज और पढ़ी थी हमने, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? व्हाट आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बेटा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ओके, सो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? Two rational numbers are said to be equivalent if one of the rational numbers can be obtained from by other multiplying, dividing or dividing numerator and denominator। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमें कैसे मिलता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर हम क्या करें, किसी रेशनल नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम दूसरा रेशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? वो दोनों नंबर्स क्या होंगे? आपके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। मान लो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 अपॉन में 25, ठीक है, 15 अपॉन 25 है एंड आपका क्या है? 3 अपॉन में 5। अब आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है? क्यों हो सकते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है आपकी, कि आपका जो दो रेशनल नंबर है, अगर आपका दोनों में से कोई एक रेशनल नंबर पहले वाले रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड होके आया है, तो हम क्या कहेंगे? कि वो दोनों रेशनल नंबर क्या है? आपके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। जैसे मान लो कि आपका ये 15 अपॉन 25 है, ठीक है, अगर मैं इसको 15 को अगर मैं डिवाइड करूं किससे डिवाइड करूं? 5 से। अगर हमने न्यूमरेटर को डिवाइड 5 से किया है, तो डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से। तो अब आप मुझे बताओ, ये कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25। तो देखो हमने इससे क्या मिला? हमें 3 अपॉन में 5 मिल गया। ठीक है, आगे बात समझ में? तो दोनों इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे? यस। सो 15 अपॉन 25 एंड 3 अपॉन 5 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्यों है ये इक्विवेलेंट? क्योंकि हमने एक रेशनल नंबर से किसी भी सेम नंबर से उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हमने एक दूसरा रेशनल नंबर फाइंड आउट किया है। तो हम इनको क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इनको? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? सो ये इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज थी 4.1 ये हमने कर ली थी बेटा। 4.1 में किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ लिसन हियर, a new topic, that is a new topic in rational number, that is standard form of rational number. Okay, now who will tell me that what is the standard form of rational number? Raise your hands. We have discussed about it, na? Yes, Aryan, stand up beta. Yes, what are the standard form of rational numbers? Yes, Ronak, stand up. What is the standard form of rational number? Sit down, Aryan. Yes, Drishti, stand up.
Okay, so this is the only condition to become a rational standard form of rational number. Yes, Sakshi, stand up. Sit down, beta. Denominator is positive and 1 is the common factor in between the denominator and numerator. Sit down. Okay. Now listen to me carefully. What is the standard form of rational number? ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रेशनल नंबर की? अगर कोई रेशनल नंबर है, इफ देयर इज अ रेशनल नंबर, इफ द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज इज पॉजिटिव, ठीक है, इफ द डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 1, इज नॉन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. ओके, मान लो कि आपका P अपॉन Q क्या है? एक रेशनल नंबर है. मान लो P अपॉन में Q क्या है? आपका एक रेशनल नंबर है. अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहेंगे बेटा? अगर आपका डिनोमिनेटर क्या है? पॉजिटिव है. ओके, और आपके P एंड Q, आपके डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, HCF जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा. आगे बात समझ में? ओके, मान लो कि 3 अपॉन में 5 ये क्या है? एक रेशनल नंबर है. अब आप मुझे बताओ, क्या हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं रेशनल नंबर की? Yes, ma'am. क्यों? वाई? क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे? व्हाट आर द कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट, डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव. यहाँ पे डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या नहीं है? यस. एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर between the numerator and denominator. Okay, so 3 and 5 are the denominator and the numerator and the denominator. अब आप मुझे बताओ, क्या इन दोनों के बीच में हाईएस्ट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है या नहीं है? है या नहीं है? अच्छा, 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 3 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा? 1 and 3. 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 and 5. देखो, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1, और यही हाईएस्ट है, तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 है. सो 3/5 स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ या नहीं हुआ रेशनल नंबर का? हुआ ना. सो व्हाट आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर? The rational numbers in which denominator are always positive and the highest common factor between the numerator and denominator is always 1 are known as standard form of rational number. Understood? Okay, now अब हम क्या सीखेंगे? इन रेशनल नंबर्स को एक नंबर लाइन पे, सिट डाउन. इन रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? पढ़ा था ना हमने लास्ट क्लासेस में, लास्ट प्रीवियस क्लासेस में, या फिर प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? 6th क्लास पे हमने क्या पढ़ा था? कि इंटीजर्स को आप एक नंबर लाइन पे कैसे शो करते हो. ठीक है, बेटा ये क्या है? लेट अस कंसीडर दिस इज अ नंबर लाइन. दिस इज अ बेसिकली अभी ये क्या है? आपकी एक सिर्फ लाइन है. ठीक है, इसके मिड में हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? व्हाट वी विल लर्न दैट इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल. आफ्टर दैट हम क्या सीखेंगे कि रेशनल नंबर को आप एक नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? नंबर लाइन के मिड में क्या लेते हैं बेटा? 0. उसके राइट हैंड साइड में सारे नंबर्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे. एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे. ठीक है,
पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिप्रेजेंट द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, हम क्या करते हैं, 0 से इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो राइट साइड हो चाहे आपका वेदर इट इज अ लेफ्ट साइड. ठीक है, 0 के बाद क्या आएगा, राइट हैंड साइड पे सारे डिजिट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, सारे नंबर्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे. दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 5 एंड 6. एरो का क्या मतलब है, दैट दिस लाइन इज कंटिन्यूअसली. ओके, कीप क्वाइट. ओके, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा -1, -2, -3, -4, -5. So we have represented these integers on the number line. Okay, so in our next session we will talk about the representation of rational numbers on the number line. Understood? Okay, thank you.